ریڈیو پاکستان تعمیر نو فیچرز کا خصوصی سلسلہ۔ آج اس سلسلے میں بجلی کے نظام کی بحالی کے موضوع پر فیچر پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ پیشکش ریڈیو پاکستان بہاولپور۔ حالیہ سیلاب نے وطن عزیز پاکستان کے بہت بڑے حصے کو متاثر کیا۔ بہت سارے گھر اور بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، جن میں بنیادی ڈھانچہ، مواصلات اور بجلی کی فراہمی کا نظام درم برم ہو گیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق مجموعی طور پر 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد آبادی اس قدرتی آفت سے متاثر ہوئی اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ صوبہ سندھ اور بلوچستان سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، جبکہ پنجاب میں 8 اور خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ سیلاب کی تباہ کاری کی نظر ہونے والے انفراسٹرکچر کی تعمیر نو اور بحالی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، اور سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کی بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے، جس کی نگرانی روزانہ کی بنیاد پر خود وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں جہاں جہاں سیلابی ریلے نے بجلی کے نظام کو دھرم برم کیا ہے، اس کی درستگی کے لیے ڈیلی میں انشاءاللہ ان سے رابطے میں رہوں گا۔ 15 ارب روپے وفاق نے سندھ حکومت کو گرانٹ دیا ہے، اسی طرح باقی صوبوں کو بھی گرانٹس دی جائیں گی تاکہ فنڈز مہیا ہوں اور صوبے جو ہیں وہ NDMA کے ساتھ مل کر وہ دن رات جو عوامی تعمیر کے اور خوشحالی ان کو بحال کرنے کے جو معاملات ہیں ان کو طے کریں، اور انشاءاللہ جب سروے مکمل ہو جائے گا فصلوں کا اور جو انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے اس کا، پھر طے کریں گے کہ صوبے اور وفاق اس میں کیا تعاون آپس میں کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت آفت کی گھڑی میں، اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اس کا رحم مانگنا چاہیے، اور مل کر سیاست سے بالا تر ہو کر ہم قوم کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے کرم اور رحم شامل حال ہوں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہمیں اس ملک کے عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا، جس طرح کہ پاکستان کے عوام، افواج پاکستان، صوبوں کے انتظامیہ، جو فرشناز افسر، پولیس کے نوجوان اور سب صاحب حیثیت پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، KPK کے، کہ وہ آگے بڑھیں۔ کاروباری حضرات، جو صنعت کار حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے مالا مال کیا ہے، وہ آئیں، آگے بڑھیں، اس وقت دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیں۔ اور افواج پاکستان کی یونٹس کالام میں، دھیر میں، سوات میں ہوٹل گر گئے، درجنوں جانیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے وہاں پر۔ اور انشاءاللہ اگر ہم مل کر ہم اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس چیلنج سے ہم کامیابی سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دے گا، اور پاکستان کے عوام کی خیر ہو۔ انشاءاللہ پاکستان ضرور اس چیلنج سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اس وقت ملک بھر میں تمام متاثرہ فیڈرز بحال کر دیے گئے ہیں۔ جہاں پر سیلابی پانی اتر چکا ہے، ان فیڈرز میں 4 پنجاب، 22 خیبر پختونخوا، 90 سندھ اور 200 سے زائد بلوچستان میں واقع ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ NTDC کی دادو خزدار ٹرانسمیشن لائن درست کر دی گئی ہے، جس کے بعد وسطی بلوچستان کے بڑے حصے کو بجلی کی سپلائی بحال ہوگی۔ بلوچستان میں سیلاب کے دوران لینڈ سلائیڈنگ سے ٹرانسمیشن لائن متاثر ہوئی تھی۔ سبی سے کوئٹہ ٹرانسمیشن لائن کے 10 ٹاورز سیلابی پانی کی وجہ سے گر گئے تھے، ان پر بحالی کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبی سے مچھ ٹرانسمیشن لائن پر بھی بحالی کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ آپ ہیں وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر خان۔ قائد محترم محمد نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور جمہوری کابینہ کی ہدایت ہے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے پورے ملک میں سیلاب سے متاثر شدہ بجلی کے نظام کو جلد از جلد بحال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں اس مشن میں کامیابی حاصل ہوئی۔ سندھ اور پنجاب میں چند کے علاوہ تمام فیڈر اور گرڈ بحال کر دیے گئے ہیں۔ شہروں میں نکاسی آب کی موٹریں 24 گھنٹے چل رہی ہیں۔
बारिश की वजह से जिन ट्रांसफार्मरों को नुकसान पहुंचा था, इनमें से अक्सरियत को तब्दील कर दिया गया है और बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द तब्दील कर दिए जाएंगे। बलूचिस्तान में मुतासरा अजला के अलावा बिजली का निजाम अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ट्रांसमिशन के खंभे सैलाब में बह जाने के बायस बिजली पहुंचाने में रुकावट है। वजारत तवानाई के इदारे NHA के ताउन से इन तरसीली लाइनों को बहाल करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। तवक्को है कि बलूचिस्तान के बड़े इलाके को बिजली की तरसील आइंदा चंद दिनों में बहाल कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में तेज सैलाबी रैली के बायस बिजली की बहुत सी तनसीबात बह गई हैं, जिनकी असर व तनसीब के लिए वजारत तवानाई पूरी तनदही से कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरे मुल्क में सैलाब ज़दगान की झोंपड़ियों में जाकर उनके सरों पर शफकत का हाथ रखा है। इसी कौमी जज्बे के तहत वजारत तवानाई पाकिस्तानियों की तकलीफ दूर कर रही है। आपसे दुआ की अपील और अल्लाह ताला से रहमत की इस्तदा है कि वो हमें सैलाब ज़दगान की दादरसी में कामयाबी अता। आमीन। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गिरे हुए खंबे और लाइनें मुकम्मल बहाल हो चुकी हैं। 9 बंद ग्रिड स्टेशनों में से 6 ग्रिड स्टेशंस पर बिजली बहाल कर दी गई है। इसी तरह सूबे में 126 मुतासरा फीडर्स में से 121 फीडर्स को बहाल कर दिया गया है। KPK में बिजली के बुनियादी ढांचे बशमूल फीडर्स और ग्रिड स्टेशन को फाल कर दिया गया है। तबाहशुदा बिजली के खंभों और ट्रांसमिशन लाइनों को तरजीही बुनियादों पर दोबारा तामीर किया जा रहा है, जबकि नौशहरा और चारसद्दा के मुतासरा इलाकों में बिजली का निज़ाम बहाल कर दिया गया है। जमशेद नियाजी, डायरेक्टर ताल्लुकात आमा, मैप्को का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली के लिए मैप्को की जानिब से किए गए इक़दामात काबिल सताइश हैं। हालिया सैलाब ने जहां मुल्क भर में तबाही मचाई, वहां मैप्को के ज़ेर इंतजाम इलाकों डीजी खान और तौसा में भी मैप्को के सिस्टम को बुरी तरह मुतासिर किया। कई मकामात पर ट्रांसमिशन लाइन मुतासिर हुई और बहुत सारी जगहों पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मुतासिर हुआ, जिसमें हमारे 11 kV फीडर्स, ज़्यादातर उनके पोल्स, तारें और ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा तादाद में मुतासिर हुए और मैप्को को काफ़ी भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। मैप्को ने सैलाब के फ़ौरन बाद बहाली का अमल शुरू कर दिया था और इस मकसद के लिए मैप्को इंतज़ामिया ने अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल किए। हमारे तकरीबन 13 फीडर से बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता थी, जिसकी बहाली के लिए काफ़ी सामान रिक्वायर्ड था और इलाके में हालात भी नहीं थे काम करने वाले, क्योंकि कीचड़ पानी की वजह से काम करना मुश्किल था। ताहम हमारे स्टाफ की दिन रात की मेहनत और जदोजहद के बाद इन 13 फीडर से बिजली की फराहमी बहाल की गई। रिक्वायर्ड मटेरियल का तयन किया गया और मैप्को हेडक्वार्टर से और दीगर अजला से जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड था, जिसमें खंबे, तारें, ट्रांसफार्मर, क्रॉस आर्म्स और दीगर तकनीकी चीज़ें जो भी ज़रूरत थी, वो फौरी तौर पर डीजी खान और तौसा पहुँचाई गई। बिजली की फराहमी की बहाली के साथ साथ इनफरादी शिकायत पर भी भरपूर तवज्जो दी गई और निहायत कलील वक्त में मैप्को ने अपने तमाम सार्फिन की बिजली बहाल की और इसके साथ साथ जितने भी ट्रांसफार्मर्स वहाँ डैमेज हुए थे, उनकी जगह नए ट्रांसफार्मर्स लगा दिए गए ताकि सिस्टम नॉर्मल तरीके से चलता रहे। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से मुआशी शरह नमू में कमी आई है। मुतासरीन की बहाली हुकूमत पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसके बावजूद सैलाब से मुतासरा इलाकों में हुकूमती इक़दामात काबिल तहसीन हैं। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 35 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। गुज़िश्ता माह में 2 करोड़ 10 लाख सार्फिन को 14 अरब का फौरी रिलीफ दिया जा चुका है। सैलाब मुतासरा इलाकों में अवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ का कहना है, AP में, पंजाब में, गिलगित, वहाँ पर हम इंशाअल्लाह ये 25,000 रुपया फी ख़ानदान जो पहुँचाएंगे हर ख़ानदान को इंशाअल्लाह। और सिंध में इसकी तकसीम, बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी इसकी तकसीम शुरू हो गई है। हमने उन ख़ानदानों को बड़े अच्छे तरीके से जो बिस्प है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके तहत ये दिया जा रहा है, क्योंकि बिस्प के पास मुकम्मल डाटा है, पूरा अदाद व शुमार उनके पास है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं वो। तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया था कि ये 38 अरब रुपए की रकम जो वफाकी हुकूमत अपने ख़जाने से
तकसीम करेगी इन ख़ानदानों को पूरे पाकिस्तान में 25,000 रुपया फ़ी ख़ानदान, वो इंशाअल्लाह बिस्प के ज़रिए हम तकसीम कर रहे हैं और इसका बड़े अच्छे अंदाज में ये तकसीम का निज़ाम चल रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली की सप्लाई और बहाली के कामों के लिए पावर डिवीजन के तमाम अफसरान अपनी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के सैलाब से मुतासरा 81 ग्रिड स्टेशनों में से 46 ग्रिड स्टेशन से सप्लाई बहाल कर दी गई है। इब्तदाई तौर पर 11 केवी के 881 फीडर्स सैलाब से मुतासर हुए, जिससे 9,75,000 सार्फिन को बिजली की तरसील मुतासर हुई। ताहम इन मुतासरा फीडर्स में से 475 फीडर्स बहाल कर दिए गए हैं, जिससे सार्फिन को बिजली की तरसील बहाल हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम तर वसाइल बुरूए कार ला रही है और इस मकसद के हसूल के लिए मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली के साथ साथ बिजली के नए मंसूबों पर भी हिकमत अमली वज़ा की जा रही है, जिसमें शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने का जदीद मंसूबा सर्रे फहरिस्त है, जिसकी बदौलत सोलर पावर से 10,000 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकेगी। इसके साथ साथ हुकूमत पहले मरहले में सरकारी इमारात और ट्यूब वेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला कर चुकी है। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक सोलर मंसूबे के तहत कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन भी सोलर बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। अवाम का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने सैलाब मुतासरा इलाकों में तमाम शोबों समेत खसूसन बिजली की बहाली के हवाले से जो इकदामात किए हैं वो काबिल सताइश हैं। मेरा नाम शफकत महमूद है और मैं बात करना चाह रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली का जो निज़ाम ख़राब हुआ था उस हवाले से। जब ये सैलाब आया तो यहाँ पर जितने भी मेन पोल्स थे 440 वोल्ट और 11,000 वोल्ट के, उनमें से अक्सर जो थे वो ज़मीन बोस हो गए थे, तारें टूट गई थीं और बिजली का निज़ाम जो था वो बिल्कुल मनक़ते हो गया था। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब इसका फ़िज़ाई दौरा किया और वो ख़ुद भी राजौरी तशरीफ़ लाए और तोनसा में भी आए, तो फिर उन्होंने यहाँ पर जो वापडा की टीम थी उनको कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर यहाँ पर बिजली की बहाली जो है जिन इलाकों में पानी उतर चुका है उसको यकीनी बनाया जाए। तो इस सिलसिले में मुल्तान, बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ और डीजी खान का जो स्टाफ था इन शहरों से वहाँ बुलाया गया और इन इलाकों में बिजली की जो तनसीबात थी वापडा की उन पर उसकी मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया। और इस वक्त तक हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे इलाकों में बिजली का जो निज़ाम है वो बेहतर हो गया है और यहाँ पर लाइट्स जो है वो आ रही है। और इसके साथ साथ एक और भी इकदाम उन्होंने ये किया कि जो सैलाब से मुतासरा इलाके थे वहाँ पर उन्होंने बिजली के बिल जो थे वो माफ़ कर दिए थे। यहाँ पर एक चीज़ ये भी काबिल गौर है कि जिन इलाकों में अभी तक ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं वहाँ पर अभी जो है वो बिजली के जो तनसीबात हैं या जो उसकी मेंटेनेंस का जो मामला था वो अभी इल्तवा का शिकार है। तो उसके लिए वापडा की टीमें, एरीगेशन की टीमें और बाकी जो फ्लोटिंग जो महकमे हैं उनके साथ मिलकर ये प्लान किया जा रहा है कि जहाँ पर बिजली बहाल नहीं हो सकी उसको बहाल किया जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि बतौर वफाकी हुकूमत के और एज ए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो है वो जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने बर वक्त जो इक़दाम किए, जो अहकामात दिए, उनकी वजह से तोनसा, राजनपुर, डीजी खान के जो मुतासरा इलाके थे वहाँ पर ख़ास तौर पे, इसके बाद डेरा इस्माइल खान और जो ऊपर के इलाके थे वहाँ पर बिजली की जो बहाली है वो शुरू हो गई है। तो उम्मीद की जा रही है कि जहाँ जहाँ पर ये मसले हैं वो इंशाल्लाह दूर होंगे और बिजली का जो निज़ाम है वो बेहतरीन अंदाज में जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद इमरान। वतन अजीज़ को सैलाब ने जो तबाहकारियों से मुतासर हुए है, हमारे इलाके, हमारी बहुत सारी ज़मीन जो है वो बंजर हो गई, हमारे रिहायशी इलाके जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गए। वहीं पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ख़ुसूसी तौर पे बिजली का निज़ाम भी जो है ना वो दरब भरब हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में जो इलाके मुतासर हुए हैं उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की दोबारा से तामीर और ख़ुसूसी तौर पे बिजली के निज़ाम को बहाल करना सबसे अहम ज़रूरी है और इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान अपनी दिन रात
अनथक मेहनत और कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी मुतअद्दिद मरतबा उन मुतासरा इलाकों का दौरा भी कर चुके हैं और वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा भी ले चुके हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ख़ुसूसी हिदायत करते हुए उन इलाकों में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ का हुक्म दिया हुआ है, वहीं पर बिजली के निज़ाम को बहाल करने के लिए भी फौरी तौर पर इक़दामात करने के लिए मुतल्लिक़ा कंपनियों को अहकामात सादर किए हुए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान का एक बहुत ही खुशाइन काम है। इसी तरह हुकूमत के साथ अवाम ने भी बेतहाशा इमदाद की है। पाकिस्तान हुकूमत और अवाम दोनों का मजमूआ है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। और जिस तरह मौजूदा हुकूमत अपने सैलाब ज़दगान के लिए कोशिशें कर रही है, उनकी बहाली के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए, बिजली के निज़ाम की बहाली के लिए, इसी तरह पाकिस्तान की अवाम भी हुकूमत पाकिस्तान की इन तमाम काविशों में उनके साथ है। बिजली की बहाली जो है जिस तेज़ी से की गई है वो अप्रिशिएबल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बिजली ही वो एक बुनियादी एलिमेंट अब ज़िंदगी का बन गया है जिस पे तमाम ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो चलते हैं, और अगर बिजली मुअत्तल हो जाती है तो ज़िंदगी के बाकी मामलात भी मुअत्तल हो जाते हैं। यकीनन ये इक़दाम प्राइम मिनिस्टर का अप्रिशिएबल है कि उनके इस इक़दाम से बिजली तो बहाल हो गई है। ये लाजिम बात है कि बिजली की ये बहाली जो है उन लोगों की बहाली में एक कैटालिस्ट के तौर पे काम करेगी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली के निज़ाम की बहाली के हवाले से अमली इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मकसद के हसूल के लिए दाखिली वसाइल पर इन्हसार करके मुख्तलिफ ज़राए से बिजली पैदा करने का फैसला किया गया है। बिजली की कीमतें कम करने के लिए अमली काम का आगाज़ हो चुका है, जिसका तयन शफाफ तरीके से किया जाएगा। खलीज फारस बिजली सेक्टर में दिलचस्पी ले रहा है और शमसी तवानाई से माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी, जबकि शमसी तवानाई के पहले मंसूबे पर सरमायाकारों को दावत दे दी गई है। शमसी तवानाई से 60% सस्ती बिजली बनाई जा सकेगी और आने वाले सालों में 11,000 मेगावाट सिस्टम लगाने का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है। इसके अलावा तमाम सैलाबज़दा इलाकों में बिजली की बहाली के लिए मौसर इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है, जिनमें तबाहशुदा बिजली के खंभों, ट्रांसमिशन लाइनों को तरजीही बुनियादों पर दोबारा तामीर किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रहीम है। मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में एज ए चेयरमैन खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। पाकिस्तान इस वक्त सैलाब के बाद तमीर नौ और सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए तगदो कर रहा है। इस सिलसिले में जहाँ हेल्थ इश्यूज़ हैं, घरों को डैमेज हुआ है, जहाँ सड़कें तबाह हुई हैं, उसके साथ साथ बिजली की तरसील का निज़ाम भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और जिन इलाकों में सैलाब आए हैं वो लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो इस सिलसिले में बिजली की बहाली के लिए वज़ीर आज़म साहब ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए हैं और उन्होंने हुक्म दिया है कि इन इलाकों में जिनमें बिजली की तरसील का निज़ाम बहुत मुतासर हुआ है वहाँ पे तेज़ी से जो है बहाली की और तामीर नौ का काम किया जाए। वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके फ़ोन नंबर्स वेबसाइट पे और अखबारों में पब्लिश कर दिए जाएं, जिससे अवाम जो है ना इस्तेफ़ादा कर सके। वो भी अवाम की सहूलत के लिए वो पब्लिश कर दिए गए हैं। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इनमें जो लाइन थी वो चकदरा टू बरीकोट और सवार टू मट्टा, ये दोनों लाइंस जो हैं बिल्कुल कम्प्लीटली बहाल हो चुकी हैं, जो कि लोगों को बिजली प्रोवाइड कर रही हैं। सिंध के 5 ग्रिड स्टेशंस और बलूचिस्तान के 2 ग्रिड स्टेशंस पानी वहाँ पे खड़ा है। तो जैसे ही पानी की सतह कम होती है और वो ख़त्म होता है तो ये भी बहाल कर दिए जाएंगे। 100% काम जो है ना इनको करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो बिजली के हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर राना इजाज़ अली खान। पाकिस्तान में आने वाले गुज़श्ता सैलाब की वजह से पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, बल्कि ये कहना है कि इसके चारों सूबे बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए हैं, और ख़ास तौर पर सिंध का देहाती इलाका, जनूबी पंजाब और सूबा बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाके और केपी के सूबा के शुमाली इलाके बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। इनकी बहाली के लिए ना सिर्फ हुकूमत यानी मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने काम किया है, बल्कि बहुत सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs और इनफरादी तौर पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है।
जहाँ तक एक आम आदमी की बुनियादी ज़रूरियात का ताल्लुक है, यानी खुराक, रहाइश, सेहत और तालीम, इन चीज़ों को किसी भी मईशत में मुहैया करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी ज़रूरत होती है, जिसमें सड़कें शामिल हैं, मवासलात का निज़ाम है, बिजली है, गैस है, पानी की सप्लाई है, इसी तरह से हॉस्पिटल्स हैं और डिस्पेंसरियाँ शामिल हैं। पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों में और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए जो इक़दाम किए हैं, उसमें रहायशी और तिब्बी सहूलियात की फराहमी, रेलवे लाइन और सड़कों की बहाली और ख़ास तौर पर ज़ई ज़मीनों का दोबारा काबिल काश्त बनाने का अमल, बिजली की फराहमी और तालीमी अदारों की तामीर नौ शामिल हैं। जहाँ तक बिजली की बहाली का ताल्लुक है, ये एक ऐसा अंसर है जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ख़ास अहमियत रखता है। मसलन सेहत की सहूलियात हों, खुराक का मुहैया होना है, मवासलात का निज़ाम है, तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने का अमल है, ये तमाम बिजली की गैर मौजूदगी में मुमकिन नहीं हो सकते। इसी तरह ज़राअत से मुतल्लिक़ा लोगों के लिए आबपाशी का निज़ाम और छोटे और बड़े दर्जे की ज़राई सनतें चलाने के लिए बिजली की फराहमी इंतहाई ज़रूरी होती है। जहाँ तक छोटे दर्जे की सनतों का ताल्लुक है, इनमें भी बिजली की फराहमी इंतहाई ज़रूरी होती है। घरेलू सनतें ख़ास तौर पर सैलाब ज़दा इलाकों के अक्सर हिस्सों में कसरत से पाई जाती हैं। मसलन सूबा खैबर पख्तूनख्वा के स्वात के इलाके में, सिंध के रूरल एरियाज़ में और जनूबी पंजाब के इलाकों में घरेलू सनतें कसरत से मौजूद हैं। लिहाजा इन तक बिजली की फराहमी एक ऐसा अमल है जो मीशत को बहाली की तरफ लेके जा सकता है। इसके अलावा जो इलाके सैलाब से मुकम्मल तबाह हुए हैं, इन इलाकों में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, वहीं पर सैलाब मुतासरीन की नई आबादकारी वाली जगहों पर घरेलू सार्फिन के इस्तेमाल के लिए मुफ्त बिजली के मीटर लगाने के अलावा पहले माह बिजली के बिल भी माफ करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। हुकूमत पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में अपने अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं और सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से ना बैठने का अज़म लिए सैलाब से मुतासरा बहन भाइयों की खिदमत से सरशार उनके लिए खाने पीने के सामान से लेकर उनके लिए हर इक़दामात कर रही है। और जब तक बिजली की बहाली का मुकम्मल काम नहीं हो जाता, तब तक मुतबादिल ज़राए को भी इस्तेमाल करने की तजवीज़ के साथ साथ बिजली की मुकम्मल बहाली का काम भी तेज़ी से जारी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल भी कर लिया जाएगा। फीचर्स का खुसूसी सिलसिला तामीर नौ। आज इस सिलसिले में बिजली के निज़ाम की बहाली के मौजू पर प्रोग्राम आपने सुना। रावी मोहम्मद इमरान, प्रोड्यूसर मोहम्मद काशिफ खान, पेशकश रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर।